میں نے حال ہی میں میٹ ٹو اسٹک کے عنوان سے مؤثر مواصلات کے بارے میں ایک لاجواب کتاب پڑھی۔ یہ کتاب آپ کو اپنے خیالات کو واضح طور پر ترتیب دینے میں مدد کرے گی، اتنی درستگی کے ساتھ بات کرے۔ دوسرا شخص آپ کے پیغام کو واضح طور پر سمجھتا ہے، نہ صرف یہ بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے، وہ کرنا جو آپ ان سے کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ بہت قائل اور اثر انگیز تھے۔ کتاب 6 اصولوں پر مشتمل ہے۔ اس ویڈیو میں ان میں سے 5 کا خلاصہ کروں گا جو مجھے ذاتی طور پر مددگار لگے۔ یہ اصول: غیر متوقع مؤثر رابطے کی پہلی ضرورت توجہ حاصل کرنا ہے، دوسرا اسے رکھنا ہے۔ توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے پیغام کو غیر متوقع انداز میں متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ انسان نمونوں میں سوچتے ہیں۔ ہمارا دماغ ایک اندازہ لگانے والی مشین ہے جو ہمیشہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کلید اس پیٹرن کو توڑنا اور پھر اسے ٹھیک کرنا ہے۔ مثال کے طور پر، اعداد و شمار کے مطابق ہر سال ہرن میں شارک سے زیادہ لوگ مارتے ہیں، ریاست ہائے متحدہ۔ لیکن اب آپ کہیں گے، کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنا اچھا جانور شارک سے زیادہ لوگوں کو کیسے مار سکتا ہے؟ یہ معلومات غیر متوقع ہے کیونکہ یہ آپ کے ذہن میں موجود تصویر کے خلاف ہے۔ غالباً آپ باقی کہانی سننا چاہیں گے۔ ٹھیک ہے، باقی کہانی یہ ہے کہ ہرن واقعی زیادہ لوگوں کو مارتے ہیں کیونکہ وہ بہت کچھ کرتے ہیں۔ ٹریفک حادثات کی۔ تو اس اصول کو اپنے پیغام پر لاگو کرنے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنے پیغام کے مرکز کی شناخت کریں۔ دوسرا، معلوم کریں کہ اس بنیادی پیغام کے بارے میں متضاد کیا ہے اور اس سے رابطہ کریں، اس طرح سے جو آپ کے سامعین کے پیٹرن کو توڑتا ہے۔ سب سے مشکل حصہ آپ کے پیغام کا مرکز تلاش کرنا ہے۔ دوسرے سبق میں بتاؤں گا کہ اسے کیسے کرنا ہے۔ دوسرا اصول: سادگی۔ سادگی کا فارمولا یہ ہے: سادہ برابر کور پلس کمپیکٹ۔ سادہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پیغام کو گونگا کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیغام کے جوہر کا تعین کرنا اور اسے مکمل طور پر پہنچانا۔ مجھے پہلے یہ بتانے دو کہ آپ اپنے پیغام کا مرکز کیسے تلاش کر سکتے ہیں، پھر میں اسے کمپیکٹ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ کور تلاش کرنا۔ صحافیوں کے پاس اس کے لیے ایک طریقہ ہے جسے الٹا احرام کہتے ہیں، جہاں وہ ڈیلیور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے پیغام کا سب سے اہم حصہ اور اس کے بعد معاون تفصیلات شامل کریں۔ صحافی جانتے ہیں کہ پہلے 5 سے 10 سیکنڈ ہی انہیں اپنے سامعین کو پکڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ توجہ، لہٰذا وہ پہلے اپنے پیغام کا بنیادی حصہ فراہم کرتے ہیں اور پھر باقی تفصیلات شامل کی جاتی ہیں۔ کور کو تلاش کرنے کا دوسرا طریقہ کمانڈر کا ارادہ نامی طریقہ استعمال کرنا ہے۔ تصور کریں کہ آپ جنگ کے بیچ میں ہیں اور آپ صرف ایک ہی پیغام کو ٹیلی گراف کر سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ لائن کٹ جائے۔ یہ کیا ہوگا؟ الٹا احرام اور کمانڈر کا ارادہ عظیم طریقے ہیں کیونکہ وہ آپ کو ختم کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ سب کچھ اور واحد سب سے اہم چیز پر توجہ مرکوز کریں اور کچھ نہیں۔ ایک بار جب آپ کو کور مل جائے تو اگلا مرحلہ اسے کمپیکٹ بنانا ہے۔ آپ کے پیغام کو کمپیکٹ بنانے کے لیے یہاں 2 حربے ہیں۔ سب سے پہلے میموری جھنڈوں کا استعمال کریں اور اپنے سامعین کی موجودہ میموری میں ٹیپ کریں۔ مثال کے طور پر، ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیم پر ایک سروے کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ صرف 37% ہی جانتے ہیں جس مقصد کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اس سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر سنجیدگی سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ صورتحال کے جب آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کہنے کے بجائے کہ ہماری ٹیم کا صرف 37% ہمارے ہدف کو جانتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، ہم 11 کھلاڑیوں کے ساتھ ایک فٹ بال ٹیم ہے، تاہم گول کیپر سمیت 7 کھلاڑی یہ نہیں جانتے کہ وہ کس طرف سے حملہ کر رہے ہیں۔ یہ صرف 4 کھلاڑی جانتے ہیں، باقی 7 کھلاڑیوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ساکر گیم کو جھنڈے کے طور پر استعمال کرنا زیادہ اہم اثر ڈالتا ہے کیونکہ ملازمین آسانی سے کر سکتے ہیں۔ سمجھیں کہ 7 کھلاڑیوں کے ساتھ ایک ٹیم کتنی خوفناک نظر آ سکتی ہے، نہ جانے کس طرف سے حملہ کرنا ہے اور جس کا دفاع کرنا ہے۔ تو حکمت عملی کیا ہے؟ تشبیہات۔ ڈین شرمین الجبرا کے استاد تھے جو اکثر یہ سوال کرتے، ہم واقعی کیوں نہیں ہیں؟ حقیقی زندگی میں اسے استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ ڈین کہتے ہیں، سب سے پہلے میں واقعی ناراض تھا اور مختلف جواز پیش کروں گا کہ وہ کیوں۔ الجبرا کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اب میں کہتا ہوں، کبھی نہیں۔ آپ اسے اپنی زندگی میں کبھی استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں بات ہے، اب جم میں نہیں جاتے اور وزن نہیں اٹھاتے کیونکہ ایک دن کوئی آپ کو جم میں لیٹ سکتا ہے۔
सड़क के बीच में और अपने सीने पर बारबेल लगाएं और अब से बेंच प्रेस करने को कहें। आप वजन उठाते हैं क्योंकि आप मजबूत और सेहतमंद बनना चाहते हैं। आप ऐसा करते हैं ताकि एक दिन आप अपने पोते पोतियों को बगैर दर्द के उठा सकें। आप ऐसा करते हैं ताकि आप अपना ग्रोसरी ले जा सकें। रियाजी एक ही है। आप मंतकी तौर पर सोचने की अपनी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए रियाजी की मशक़ें करते हैं ताकि आप बन सकें एक वकील, एक डॉक्टर या एक मेमार। ये तशबीह काफ़ी मुअस्सर है क्योंकि इससे आपको ये समझ आती है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं रियाजी। इसके अलावा अगर आपने देखा, इब्तिदाई जुमला गैर मुतवक्के था और पैटर्न को तोड़ देता है। कभी नहीं, आप उसे अपनी ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो खुलासा करने के लिए सादा कोर प्लस कम्पैक्ट के बराबर है। कोर को तलाश करने और कोर बनाने के लिए उल्टा अहराम कमांडर के इरादे के तरीके इस्तेमाल करें। पैगाम कोम पैकेट, तशबीहात या मेमोरी झंडों का इस्तेमाल करें। तीसरा उसूल, ठोस। कंक्रीट का मतलब है कि जितना ज्यादा लोग उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसे सूंघ सकते हैं और उसे सुन सकते हैं, इतना ही कुछ हकीकी महसूस होता है। माहिरीन ज्यादा तजरीदी हासिल करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा इल्म होता है। ज्यादातर ख्यालात को समझना और याद रखना मुश्किल होता है और उसकी वजह से वो मुख्तलिफ तशरीहात के लिए खिले हैं। आपके ख्याल में कौन सा याद रखना आसान है, साइकिल या नाइंसाफी? अगर मैं आपको बताऊं कि फिल्मी पॉपकॉर्न में 20 ग्राम चर्बी होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम, लेकिन इसके बजाय अगर मैं ये कहूं कि फिल्मी पॉपकॉर्न में नाश्ते में बीकन और अंडों से ज्यादा चर्बी होती है, एक बिग मेक और दोपहर के खाने के लिए फ्राइज और रात के खाने के लिए एक स्टेक, सब मिलकर आपका इम्कान ज्यादा है मुस्तकबिल में पॉपकॉर्न से बचने के लिए, जो कि मुअस्सर इबलाग का निचोड़ है, लोगों को अमल करने पर मजबूर करता है। आप सिर्फ ये नहीं चाहते कि वो आपके पैगाम को समझें, आप ये भी चाहते हैं कि वो कार्रवाई करें। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे सिर्फ रियाजी की अहमियत को समझें, आप भी चाहते हैं रियाजी का मुताला करना। अगर आप कारपोरेट माहौल में काम कर रहे हैं तो आपने शायद ऐसे जुमले सुने होंगे जैसे मिशन का बयान, विजन, हम आहंगी और स्ट्रेटेजिक इक़दामात वगैरह। कंपनियों के बहुत से माहिरीन अपनी पेशकशों में इस किस्म के फैंसी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। सामीन को सोने देता है। माहिरीन इल्म की लानत कहलाने वाले रुझान का शिकार है। इस रुझान के मुताबिक एक बार जब हम किसी चीज को जान लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि यह कितना मुश्किल था। नहीं, इसे जानने के लिए हम भूल जाते हैं कि इब्तिदाई होना कितना मुश्किल था। हमारे इल्म ने हम पर लानत भेजी है और हम अपने आप को सुनने वालों के जूते में नहीं डाल सकते। टीपर और सुनने वाला एक मशहूर तजर्बा है। इस तजर्बे में उन्होंने लोगों के एक ग्रुप को लिया और उन्हें 2 टीपर और सुनने वालों में तकसीम किया। टैपर्स को मशहूर गानों की एक फहरिस्त मिली जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू। हर टीपर से कहा गया कि वो एक मेज पर दस्तक देकर गाने की ताल को सुनने वालों को सुनाए। सुनने वालों का काम टेप किए जाने वाले ताल की बुनियाद पर गाने का अंदाजा लगाना था। इससे पहले कि सामीन गाने के नाम का अंदाजा लगा ले, तजर्बाकार ने टीपर से पेशीन गोई करने को कहा। वो मुश्किलात जिनका सुनने वाले से ही अंदाजा लगाएंगे। टीपर्स ने पेश गोई की मुश्किलात 2 में से 50% थी। ताहम हकीकत में सामीन ने गाने का सही अंदाजा लगाया 40 में से सिर्फ 1, 2, 5। ये इल्म की लानत है। ये इन वजूहात में से एक है जो आपके असातिज़ा को लगता है कि इसने वजाहत करने में एक बेहतरीन काम किया है मौजू, लेकिन हकीकत में वो नहीं है। ये तजर्बा मैनेजर्स और मुलाजमीन, असातिज़ा और तलबा के दरमियान रोजाना खुद को दोहराया जाता है। मार्केटर्स और सार्फिन, मुसन्निफीन और कारीन। लिहाजा इस तीसरे उसूल का खुलासा अपने पैगाम को ठोस बनाने के लिए अल्फाज और फिक्रे इस्तेमाल करें जो महसूस करने, देखने या सुनने में आसान है। इल्म की लानत को हमेशा अपने पास रखें और तजरीदी अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज करें। चौथा उसूल, कहानियां। जेरेड नामी लड़के को वजन का शदीद मसला था। कॉलेज में अपने जूनियर साल तक जेरेड ने 425 पाउंड 192 किलोग्राम का गुब्बारा उड़ा लिया था। उसने 6XL साइज की कमीजें पहन रखी थीं, जो कि सबसे बड़ा साइज है। इसकी जिंदगी के फैसले इसके वजन पर काबू पाते थे। जब इसने क्लास के लिए इंदराज किया तो उसने अपनी पसंद प्रोफेसर क्लास पर नहीं रखी। वक्त ज्यादातर तालिब इल्मों की तरह उसने अपनी क्लासों को इस बात पर रजिस्टर करने के लिए बनाया कि आया वो क्लास रूम की नशिस्तों पर फुट हो सकता है। जब ज्यादातर लोग परेशान थे कि आया उन्हें कैंपस के करीब पार्किंग की जगह मिल सकती है,
जेरेड परेशान था कि आया उसे पार्किंग की जगह मिल जाएगी जिसकी गाड़ी करीब ही खड़ी हो, क्योंकि इसे दरवाजे को मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए इजाफी कमरे की जरूरत थी ताकि वो बाहर निकल सके। इसके वालिद एक आम प्रैक्टिशनर ने इसे खबरदार किया कि शायद इसका वजन उसे जिंदा न रहने देगा। गुज़िश्ता 35 लेकिन मौसम बहार के वक्फे के बाद जेरेड ने सख्त ग़िज़ा पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया था। खुद ईजाद किया। उसने एक बार सबवे सैंडविच खाया और उसे इतना पसंद आया कि इसने डाइट पर मबनी ग़िज़ा बनाने का फैसला किया। सिर्फ सबवे सैंडविच पर। सबवे डाइट पर अमल करते हुए उसने 3 महीनों में तकरीबन 100 पाउंड 45 किलोग्राम वजन कम किया और वो ज्यादा से ज्यादा वजन कम करता रहा। अहम वजन कम करने के बाद इसके जिस्म ने इसे अपनी फिटनेस रूटीन शुरू करने की इजाजत दी। उसने ज्यादा से ज्यादा पैदल चलना शुरू किया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से गुरेज किया। खुद कार बरकी सीढ़ियां। जब जेरेड के बारे में एक मजमून शाया हुआ तो उसकी तब्दीली की कहानी कौमी बन गई। अमेरिका में रुझान। मजमून में बताया गया है कि किस तरह मोटे होने ने जेरेड की रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर किया था कि किस तरह सबवे एक फास्ट फूड रिसत्तुरा ने इसकी जिंदगी को बदलने में मदद की थी। मजमून जेरेड के एक इक्तिबास के साथ खत्म हुआ कि सबवे ने मेरी जिंदगी बचाने और शुरू करने में मदद की। खत्म। मैं इसका बदला कभी नहीं चुका सकता। यह पहला मौका था जब एक फास्ट फूड चीन को मुस्बत तब्दीली का सेहरा मिला। किसी की जिंदगी इतने गहरे तरीके से। जेरेड की कहानी इतनी वायरल हुई कि हर कोई अपने प्लेटफॉर्म पर उसके बारे में बात करना चाहता था। 1999 में सबवे की फरोख्त फ्लैट थी। 2000 में फरोख्त में 18% इजाफा हुआ और 2001 में इसमें मजीद 16% इजाफा हुआ। सिर्फ मवाजना के लिए उस वक्त दीगर तेजी से बढ़ती हुई छोटी फास्ट फूड चेन्स सिर्फ बढ़ रही थी, हर साल 7 की शरह से। जेरेड की कहानी इन लोगों के लिए एक तहरीक का काम करती है जो वजन कम करने के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। ये इस्तिकामत और अज़्म की कहानी है और ये जाहिर करती है कि इस बड़े आदमी ने 245 पाउंड्स कैसे कम किए। 111 किलोग्राम एक ग़िज़ा पर जो उसने खुद ईजाद की थी। कहानी हर इस शख्स के लिए अच्छी हौसला अफजाई करती है जो सिर्फ चंद खोने के लिए जिदोजहद कर रहा है। पाउंड है और उसे हौसला अफजाई की जरूरत है। अगर आपको अपना पैगाम पहुंचाने के लिए कहानियों के इस्तेमाल के बारे में शुबा है तो यहाँ 4 है अहम वजूहात जो आपके जहन को बदल देंगी। 1. जेरेड मुहिम की कामयाबी एक याद दहानी के तौर पर काम करती है कि लोग अक्सर ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं आदाद व शुमार मार्केटिंग की मुहिमों के बजाय हकीकी जिंदगी की मुतासिरकुन कहानियों के बारे में सुनने में। एक कहानी में लोगों से जाती सतह पर राब्ता कायम करने की ताकत होती है जो उसे ज्यादा असर अंगेज बनाती है। 2. जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो हम उसे सिर्फ सुन ही नहीं रहे होते, हम उसे जिंदा भी कर रहे होते। कहानी सिर्फ मालूमात को मुंतकिल नहीं करती, यह हमें अपनी तरफ खींचती है और हमें क्या महसूस करती है। मरकजी किरदार एहसास है जैसे खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़, हिम्मत वगैरह। हम तकरीबन ऐसा महसूस करते हैं जैसे किरदार के साथ हो रही चीजें हमारे साथ भी हो रही है। 3. कहानी के जरिए अब जो पैगाम देते हैं वो बहुत ज्यादा जिंदा रहता है। लोग कहानियां बरसों गुजर जाने के बाद भी याद करते हैं। मिसाल के तौर पर इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको ज्यादातर बातें याद नहीं होंगी जो आपने सुनी हैं, लेकिन जेरेड की कहानी शायद आपके साथ रहेगी। 4. आपके पास अपनी कहानियां होने की जरूरत नहीं है या आपको कहानियां ईजाद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अच्छी कहानियों का पता लगाने के काबिल होने की जरूरत है जो आपके आसपास पहले से मौजूद है। मिसाल के तौर पर जेरेड की कहानी का पता एक मैनेजर ने लगाया था। 5. जज्बाती मदर टेरेसा ने एक बार कहा, अगर मैं बड़े पैमाने पर देखती हूं तो मैं कभी अदाकारी नहीं करूंगी, अगर मैं एक को देखता हूं तो मैं करूंगा। मुहक्किकीन इस ख्याल की जांच करना चाहते थे और यह देखना चाहते थे कि लोगों ने खैराती अतियात पर किया रद्द अमल जाहिर किया। एक शख्स के मुकाबले में एक तजरीदी वजह से उन्होंने शुरका को सर्वे मुकम्मल करने के लिए $5 की पेशकश की और उन्हें एक लिफाफा मिला। खैराती दरख्वास्त का खत उन्हें अपनी कुछ रकम अतिया करने का मौका फराहम करता है। बच्चों को बचाने के लिए दुनिया भर में बच्चों की फलाह व बहबूद पर तवज्जो मरकूज करने वाला एक खैराती इदारा। मुहक्किकीन ने दरख्वास्त खत के 2 वर्जन का तजुर्बा किया। पहले वर्जन में अफ्रीका में बच्चों को दरपेश मसाइल के बारे में अदादोशुमार शामिल थे, जैसा कि मलावी में खुराक की कमी 3 मिलियन से ज्यादा बच्चों को मुतासिर करती है, और दूसरा वर्जन माली से ताल्लुक रखने वाली अकेली नौजवान लड़की रोकिए के बारे में था।
रोकिए इंतहाई गरीब है और इसे शदीद भूख और इफलास के खतरे का सामना है। खत में तफसील से बताया गया है कि अगर वो अतिया करते हैं तो उसकी जिंदगी कैसे बेहतर हो जाएगी। औसतन जिन लोगों ने रोकिए की कहानी के बारे में पढ़ा उन्होंने $2.38 का हिस्सा डाला, जो इससे ज्यादा था। अदादोशुमार पढ़ने वाले लोगों से दुगना जिन्होंने $1.14 का ताउन किया। ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों में मदर टेरेसा के साथ कुछ मुश्तरक है। एक फर्द अवाम को तरसता है, लेकिन मुताला यही खत्म नहीं होता। मुहक्किकीन ने लोगों के दोनों गिरोहों को रुकिया की कहानी दी, लेकिन इस बार पढ़ने से पहले इसकी कहानी उन्होंने एक ग्रुप से कुछ हिसाब किताब करने को कहा और दूसरे ग्रुप से कहा गया कुछ एहसासात बयान करें, जैसे कि एहसास बयान करना जब वो लफ्ज बच्चा सुनते हैं। जब लोगों को कहानी पढ़ने से पहले महसूस किया गया तो उन्होंने पहले की तरह $2.34 दिया। ताहम दूसरे गिरोह ने जो वही रोकिए की कहानी पढ़ी थी लेकिन हिसाब किताब करने पर आमादा थी, सिर्फ 1.26। ये नताइज चौंका देने वाले हैं। बेतरतीब हिसाब किताब करने के सादा अमल ने लोगों के खैराती अतियात को कम कर दिया। बावजूद इसके हकीकत यह है कि उन्होंने एक ही जज्बाती रोकिए की कहानी पढ़ी। ऐसा लगता है कि एक बार जब हम अपनी तज्जियाती टोपी पहन लेते हैं तो हम मुख्तलिफ रद्द अमल का इजहार करते हैं, चाहे कहानी ही क्यों ना हो, जज्बाती है। तो आपके लिए नतीजा यह है, नंबर 1, अपना पैगाम पहुंचाते वक्त मखसूस अफराद के लिए हमदर्दी पैदा करें, अवाम को मुखातिब न करें। नंबर 2, लोगों को अपनी तज्जियाती टोपियां उतारने और जज्बाती लिबास पहनने में मदद करें। अपना पैगाम पहुंचाने से पहले टोपी। आप अपना पैगाम पहुंचाने से पहले जो कुछ करते या कहते हैं वो पैगाम से ज्यादा असर अंगेज हो सकता है। खुद फर्स्ट रॉबर्ट चाइलिनी की इस मौजू पर एक अजीम किताब है जिसका उन्वान है प्रीसॉइशन। किताब में रॉबर्ट ने यह नतीजा अखज़ किया है कि अगर मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कर सकता हूं, आइए कहते हैं मददगार, इंसाफ पसंदी या रोमांस, इससे पहले कि मैं अपना पैगाम पहुंचाऊं, फिर इस वक्त आप मददगार बन जाएं, मुनसिफाना या रोमानवी शख्स। दूसरे लफ्जों में हरबों का इस्तेमाल करते हुए मैं आपकी शनाख्त को खास तौर पर तब्दील कर सकता हूं। सूरत हाल, मैं बदल सकता हूं कि आप कौन हैं, मैं बदल सकता हूं कि आप अपने आप को कैसे समझते हैं और मैं कैसे बदल सकता हूं। तुम मुझे और मेरे पैगाम को समझते हो। अगर आप परसोशना हिकमत अमली के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो आप जो वीडियो देखते हैं इसे देखें।